Before we begin with this seminar, that is National Education Policy, I have chosen to speak in Hindi because this is a new policy which will be applicable maybe from 24. But today we need to understand. Suppose after my presentation you have any suggestion or any question, you can ask me in the chat box. And before this, I would like to dedicate this hour to God, to descend His blessings upon all my parents and children who are attending this seminar. God, our loving Father, we thank and praise you for gathering us as Claren family. Thank you for all the parents who have taken keen interest to come together to understand this national education policy so that the future of their children may be bright and fruitful. We ask you to bless all the parents and children of the school, to give them good health of mind and body, sharpen the intellect of children and parents' cooperation and support to the school, that school may flourish like a palm tree and all the children may come out successful in their life by support through the school, through the sisters, teachers, parents, all the staff. We surrender this hour, O Lord, to you. Bless us that we may cooperate with your mercy, with your Holy Spirit. Fill us with your Holy Spirit so that we may remain in your presence grateful. We ask this prayer through Christ our Lord. Amen. Okay, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 साल 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई थी और बाद में 1992 में इसे संशोधित किया गया था। पिछली इस नीति के बाद से 3 दशक से अधिक हो गया था। इन 3 दशकों में हमारे देश, समाज की अर्थव्यवस्था और दुनिया में बड़े पैमाने पर Excuse me, sister. Sister, your voice is not coming. Yes, sister, your voice is not coming. Yes, sister. voice is not reaching to okay. मैं विश्वास करती हूँ अब मेरी आवाज आप सब पर पहुंच रही है। हाँ जी, मेरे को Yes, ma'am. पहचान होनी चाहिए, स्वीकृति, दैट मीन्स एक्सेप्टेंस एंड रिकग्निशन ऑफ चिल्ड्रन, लचलीलापन, ताकि बच्चों में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता विकसित हो। दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी इन चिल्ड्रन टू चूज व्हाट दे डिजायर। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। गुणवत्ता शिक्षा तक पहुंच को हर बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। That means all the children have right to study, and so this policy is suggesting that all the children should be included. Previously we used to take actually 6 years onwards,
and most of the schools were starting from class 1. And so now it is asking this policy that children should be admitted in the school from 3 to 18 years. इस नीति का and secondly, the pride of being an Indian that has to be created in our children. स्कूल शिक्षा में बदलाव पहले कैसे था? 2 साल, ये नीचे से शुरू करेंगे तो हम जैसे 6 years से 18 years तक का स्कूलिंग था जो आज चल रहा है, पर अभी जो नई शिक्षा हमको दे रही है स्वीकृति, उसमें कह रही है कि आंगनवाड़ी या जैसे हमारे स्कूल में ऑलरेडी है, प्री प्राइमरी है, 3 मतलब 2nd क्लास तक का ही बोल रहे हैं, 3 to 6 वो हमारे स्कूल में ऑलरेडी है. देन 2 years जो आपकी एज ग्रुप 6 to 8 क्लास, दैट इज 3 and 4. उसके बाद बेसिकली ये जो नई शिक्षा है वो हमारे स्कूल से मैच हो रही है कि हम ऑलरेडी ये चीजें कर रहे हैं. अब जैसे 3 years की जो इनकी स्टडी होगी वो क्लास 3 to 5 की होगी, नेक्स्ट 3 years की है वो 6 to 8 की है, उसकी एज ग्रुप 11 to 14 है. नेक्स्ट जो है वो 9th to 12 4 years की टुगेदर है. कहने का अर्थ है पहले बोर्ड एग्जाम 10th और 12th में, कहने का अभी भी 2 साल होंगे, बट 2 साल के बाद बच्चों के एग्जाम सिर्फ 12th में होंगे बोर्ड के, दैट मीन्स 10th में नहीं होंगे. और इसको जैसे पहली जो इनकी 2 years की ट्रेनिंग है जो हमारी LKG UKG 1st 2nd है वो फाउंडेशन जिसको कहते हैं नीव, और उसके नेक्स्ट जो 3 years की स्टडी है 3 to 5 क्लास की वो प्रेपरेटरी है. नेक्स्ट 6 to 8 है उसको मिडिल स्कूल कहा जाएगा, और नेक्स्ट है वो सेकेंडरी कहा जाएगा. अभी सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी है, वो 4 साल सेकेंडरी में बदल जाएंगे. तो ये ट्रेनिंग का थोड़ा सा फर्क है. हमारा स्कूल जो स्टार्टिंग पॉइंट है एग्जैक्टली सेम कर रहा है जो चेंजेस अभी शिक्षा चाहता है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित चुनौतियां. महंगी शिक्षा. नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है. विभिन्न शिक्षा विधियों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था महंगी होने की संभावना है. परिणाम स्वरूप नम्र वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा. अभी भी हम देखते हैं कि हमारे अधिकतर बच्चे जैसे अपनी ग्रेजुएशन तो यहाँ कर लेते हैं, बट यूजुअली अपने हायर स्टडीज के लिए वो फॉरेन चले जाते हैं. ये कह रहे हैं कि हायर स्टडीज थोड़ी महंगी हो जाएगी क्योंकि फॉरेन में अगर पढ़ना जो चाहते हैं, पर हो सकता है उनके विश्वविद्यालय हमारे इधर अपनी यूनिवर्सिटीज डाल के पढ़ाई करवाए, पर वो बहुत महंगी हो जाएगी. वैसे तो जहां तक मुझे पता है कि काफी फॉरेन यूनिवर्सिटी ऑलरेडी हमारी एस्टैब्लिश है. दूसरी चुनौती जो हम भारतीयों के आगे होगी वो शिक्षकों का पलायन. दैट मीन्स विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारत के दक्ष शिक्षक भी इन विश्वविद्यालयों में अध्ययन हेतु पलायन कर सकते हैं. नेक्स्ट जो चुनौती है हमारे आगे वो है शिक्षा का सांस्कृतिकरण. दक्षिण भारतीय राज्यों का ये आरोप है कि त्रिभाषा सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है. अगर आपको ध्यान देंगे तो हमारे स्कूल में ऑलरेडी ये 3 लैंग्वेजेस है. 3 लैंग्वेजेस कौन सी है? इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत. हम लोग संस्कृत 3 क्लासेस में रखते हैं. तो ये सिस्टम ऑलरेडी हमारे पास है, CBSE में ऑलरेडी है, पर अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आएगी, अभी तो ये पॉलिसी फॉर्म में है, जब लॉ बनकर आएगी तो ये सभी बोर्ड में लागू हो जाएगी. सांसद का अवहेलना. विपक्ष का आरोप है कि भारतीय शिक्षा की दशा व दिशा तय करने वाली इस नीति को अनुमति देने में सांसद की प्रक्रिया
का उल्लंघन किया गया। पूर्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी सांसद के द्वारा लागू की गई थी। मानव संसाधन का अभाव। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के कार्यान्वयन में व्यवहारिक समस्याएं हैं। These are all challenges which we are going to face. That means human rights problem might come. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संभावनाएं। छात्रों के लिए वित्तीय सहायता। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने और ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। जैसे आजकल आप ऑनलाइन में स्कूल में देखते हैं, स्कूल की जो वेबसाइट है उसमें स्टूडेंट पोर्टल भी है, पेरेंट पोर्टल भी है, टीचर पोर्टल भी है, जिसके थ्रू आप स्कूल के बारे में जान सकते हैं, या स्कूल को अगर कुछ भी बातचीत करनी है उसके थ्रू आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, और आपकी जैसे बच्चों की जो भी डिटेलिंग्स है, स्टडी पार्ट है, प्रोग्राम पार्ट है, वो सब आप उसके थ्रू देख सकते हैं। तो ये सेम चीज से ट्रैक करेंगे जब ये अपनी राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति पोर्टल बनाएंगे। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको AI भी बोला जाता है, आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग। ये अभी CBSE एक नया सब्जेक्ट लेकर आई है जो कि अभी शुरू हो गया है। इससे ये है कि आप लोग मतलब जो भी चाहेगा बच्चे आगे बढ़ के अपने खुद सॉफ्टवेयर बना सकेंगे, मतलब उनको वो नॉलेज हो जाएगी कि हम कैसे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ किसी लाइफ स्किल से सीधा जोड़ना। लाइफ स्किल आपको पता आजकल सारे ही स्कूल या शिक्षा अधिकतर स्किल पे बेस्ड हो गई। उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे की काबिलियत किस चीज में है। अब जरूरी नहीं है हर बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा हो सकता है, एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, दूसरा बच्चा डांस में अच्छा हो, तीसरा बच्चा अपनी टेक्निकल उसमें अच्छा हो, कोई अपना लॉ के, मतलब इस 9 to 12 की जो शिक्षा होगी इसमें बच्चों को ये मौका, 9 to 12 क्या 6 to 12 में ये मौका मिलेगा। बच्चे अपनी रिकग्नाइज करेंगे, मेरी जो काबिलियत है उसके हिसाब से मैं सब्जेक्ट चुनूंगी और उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को एक रास्ता मिलेगा, ताकि उनकी स्किल के ऊपर काम होगा। अभी भी है, पर अब जो आने वाली जो एजुकेशन होगी वो इसके आधार पर होगी, ज्यादातर स्किल के आधार पे। अभी तक आप आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम, दैट इज को कैरिकुलर या अतिरिक्त पाठ्यक्रम, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी के तौर पर पढ़ते आए हैं। अब ये मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। इन्हें एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी भर नहीं कहा जाएगा। पहले ये होता था जैसे एकेडमिक्स है एक साइड हो जाती थी, को कैरिकुलर और एक्स्ट्रा कैरिकुलर को हम सेपरेट रखते थे। अभी ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ये सब कुछ मिक्सअप करके जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें ये लोग पार्टिसिपेट कराएंगे, ताकि बच्चे अपनी काबिलियत ढूंढ के पेरेंट्स की हेल्प और टीचर्स की हेल्प के द्वारा बच्चे वही पढ़ाई करें जिसमें उनको इंटरेस्ट हो। इसके अलावा अब बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल को जोड़ा जाएगा। जैसे कि आपने अगर स्कूल में कुछ रोजगार परक सीखा है तो इसे आपके रिपोर्ट कार्ड में जगह मिलेगी, जिससे बच्चों में लाइफ स्किल का भी विकास हो सकेगा। अभी तक रिपोर्ट कार्ड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि आप ये देख सकते हैं, इसमें काफी चीजें दे रखी है, जैसे क्रिएटिविटी है, आपका लीडरशिप है, या क्वालिटीज है, इमोशनल क्वालिटीज, एम्पैथी है, कॉग्निटिव मतलब
लर्निंग स्किल है, थिंकिंग स्किल है, क्रिएटिव स्किल है, कोलैबोरेशन है, बच्चे मिलके काम करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी, ये चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और जैसे ये जब स्किल्स बच्चों की बढ़ेगी, पेरेंट्स और टीचर्स इसको रिकग्नाइज करके बच्चों को प्रोत्साहन करेंगे कि जिस चीज में आप स्ट्रांग है उसमें आप डेवलप होके आगे की पढ़ाई करें और अपनी जो जिंदगी है वो उसी आधार पे बनाएं। निष्कर्ष, अतः निष्कर्ष स्वरूप हम यह कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 में कुछ कमियों के बावजूद भी काफी सारी संभावनाएं हैं जो विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाने और उनका सर्वांगीण विकास करने में सहायक आवश्यक होगी। धन्यवाद। मैंने कोशिश करी है छोटे से छोटे फॉर्म में, ये 63-64 पेजेस की डॉक्यूमेंट है, पर मैंने इसको बहुत छोटे में प्रेजेंट करा है ताकि आप लोग इस बात को समझ सके पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। और अब मैं एक आपको वो भी दिखाती हूँ, एक वीडियो जो कि BBC ने निकाली है और मुझे बहुत पसंद आई है कि उसमें पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी, आने वाली जो पीढ़ी रहेगी वो कैसी होगी, और हम पेरेंट्स और टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन को या मैनेजमेंट को कैसे हमारे बच्चों को आगे की पढ़ाई करवानी है। अगर आप छोटे बच्चे के माता पिता हैं तो आपको इस बात की चिंता होगी कि क्या नई शिक्षा नीति के बाद भी आपको अपने बच्चे के नर्सरी में दाखिला कराने को लेकर माथापच्ची करनी होगी। और अगर आपके बच्चे 10वीं या 12वीं में पढ़ने वाले हैं तो आपको इस बात की फिक्र होगी कि कॉलेज में दाखिले के लिए क्या अब भी 90% से ऊपर अंक लाने होंगे। और अगर आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपकी चिंता नौकरी से जुड़ी होगी। क्या नई शिक्षा नीति से उन्हें नौकरी तलाशने में आसानी होगी। जब से सरकार ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया है, आम जनता ऐसे ही सवालों के जवाब तलाश रही है। सबसे पहले शुरुआत स्कूली शिक्षा से करते हैं। नई शिक्षा नीति में पहले जो 10+2 की बात होती थी, अब उसकी जगह सरकार 5+3+3+4 की बात कर रही है। 5+3+3+4 में 5 का मतलब है 3 साल प्री स्कूल के और क्लास 1 और 2। उसके बाद के 3 का मतलब है तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास। उसके बाद 3 का मतलब है 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास। और आखिर के 4 का मतलब है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास। यानी अब बच्चे 6 साल की जगह 3 साल की उम्र में फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे। अब तक बच्चे 6 साल में पहली क्लास में जाते थे, तो नई शिक्षा नीति लागू होने पर भी 6 साल में बच्चा पहली क्लास में ही होगा, लेकिन पहले के 3 साल भी अब फॉर्मल एजुकेशन वाले ही होंगे। प्ले स्कूल के शुरुआती साल भी अब स्कूली शिक्षा से जुड़ेंगे। इसके अलावा स्कूली शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण बदलाव है भाषा के स्तर पर। नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की बात की गई है, जिसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा, लोकल भाषा में पढ़ाई की बात की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जहां संभव हो वहां कक्षा 8 तक इसी प्रक्रिया को अपनाया जाए। संस्कृत भाषा के साथ साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में पढ़ाई पर भी जोर दिया गया है। सेकेंडरी एजुकेशन में स्कूल चाहें तो विदेशी भाषा भी विकल्प के तौर पर दे सकते हैं। स्कूली शिक्षा में तीसरी बात बोर्ड परीक्षा में बदलाव से जुड़ी है। पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्जाम में कई बदलाव किए गए। कभी 10वीं की परीक्षा को वैकल्पिक किया गया, कभी नंबर के बजाय ग्रेड्स की बात की गई, लेकिन अब परीक्षा के तरीके में बदलाव की बात नई शिक्षा नीति में की गई है। बोर्ड एग्जाम होंगे और अब 2 बार होंगे, लेकिन इनको पास करने के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं होगी। परीक्षा का स्वरूप बदलकर अब छात्रों की क्षमताओं का आकलन किया जाएगा, न कि उनकी याददाश्त का। केंद्र सरकार की दलील है कि नंबरों का दबाव इससे खत्म हो जाएगा। साल 2022-23 वाले सत्र में इस बदलाव को लागू करने की मंशा जताई गई है। इन बोर्ड परीक्षाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारें कक्षा 3, 5 और 8 में भी परीक्षाएं लेंगी। इन परीक्षाओं को करवाने के लिए गाइडलाइंस बनाने का काम नई एजेंसी को सौंपा जाएगा, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करेगी। इसी तरह के बदलाव उच्च शिक्षा में भी किए गए हैं। अब ग्रेजुएशन यानी अंडर ग्रेजुएट में छात्र 4 साल का कोर्स पढ़ेंगे, जिसमें बीच में कोर्स छोड़ने की गुंजाइश भी दी गई है। पहले साल में कोर्स छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल के बाद एडवांस सर्टिफिकेट मिलेगा और तीसरे साल के बाद डिग्री और 4 साल के बाद डिग्री होगी शोध के साथ। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट में भी 3 तरह के विकल्प होंगे। पहला होगा 2 साल का मास्टर्स, उनके लिए जिन्होंने 3 साल का डिग्री कोर्स किया है। दूसरा विकल्प होगा 4 साल के डिग्री कोर्स शोध के साथ करने वालों के लिए। ये छात्र 1 साल का
मास्टर्स अलग से कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प होगा 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों साथ ही हो जाएं। अब पीएचडी के लिए अनिवार्यता होगी 4 साल की डिग्री शोध के साथ। एमफिल को नई शिक्षा नीति में बंद करने का प्रावधान है। उच्च शिक्षा में स्कॉलरशिप के लिए नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव है। इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के दायरे को और अधिक व्यापक बनाने की बात कही गई है। प्राइवेट संस्थाएं जो उच्च शिक्षा देंगी उनको 25% से लेकर 100% तक स्कॉलरशिप अपने 50% छात्रों को देना होगा। ऐसा प्रावधान भी इस नई शिक्षा नीति में किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रांट देने का काम हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन करेगा। इसके अलावा इन संस्थानों के अलग अलग विभागों के लिए नियम, कानून और गाइडलाइंस तैयार करने की जिम्मेदारी भी होगी।